Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Cant. Today, we are going to start with a new chapter, chapter number 3, Human Reproduction. So, today we'll be dealing with the process of reproduction in the human beings. Now, first of all, we're going to deal with the reproductive events. So first of all, you must know that humans are the sexually reproducing organisms. They are viviparous and are unisexual because male and female sex organs are present in separate bodies. Now each sex, that is whether it is a male or it is a female, they have a pair of gonads. Gonad stands for the reproductive structures, that is the reproductive units which we call either the testes or the ovaries. So that's called as gonads. Now, reproductive ducts and the accessory structures. Now, the sex organs are testes in male, which are paired, as well as ovaries in female, which are also paired. Now, and there are also present the hormones in both the types of sexes. Now, let's discuss about the events in the process of reproduction in human beings. The first step of the reproduction is gametogenesis, that is the formation of gametes, that is sperms in males and ova in females. The next is insemination. Insemination means the transfer of sperms into the female genital tract. The third step is fertilization, which is the fusion of male and female gametes leading to formation of zygote. तो सबसे पहले जब gametes का formation होगा, जो कि हमने अभी बात किया टेस्टिस या ओवरीज में होगा, जो कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम गोनाड्स कह रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप विल बी द इंसेमिनेशन. जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, पॉलिनेशन के थ्रू गेमीट्स का ट्रांसफर हो रहा था. यहाँ पे डायरेक्टली फ्रॉम द मेल द transfer of sperms occurs into the female genital tract, and this process is called insemination. The third one, which is fertilization, means the fusion of male and female gametes. Insemination के टाइम में ट्रांसफर हो चुका है स्पर्म का और उसके बाद फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गीमीट का, which will be called as fertilization, and that will lead to the formation of zygote. After this will occur the implantation. Once there is development of blastocyst from the zygote डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा फ्रॉम 1 to 2, 2 to 4 एंड सो ऑन, एंड देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट जो होगा फिर वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. आफ्टर दिस आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है इसके बारे में कि किस तरह से फिर धीरे धीरे डेवलप करता रहेगा इन द यूट्रस ओनली, फीटस का डेवलपमेंट चलता रहेगा. तो वो पूरा पीरियड इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गेस्टेशन. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का पूरा जो डेवलपमेंटल स्टेज है, दैट इज कॉल्ड एज द गेस्टेशन. Now next is the parturition. Parturition means the delivery of the baby. Once the gestation period is over, right, that we call almost to be 9 months, जैसे हम बोलते हैं 36 weeks बोलते हैं. So 36 weeks का एक बार जब gestation period over हो जाता है, then there is delivery of the baby, the child birth that we call, that is एक uterus में से it is expelled out, the child is expelled out, the fetus is expelled out, which is called parturition. Next is now we'll be talking in detail now about the male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes. So there is a pair of these primary sex organs called as testes. Along with this, there are present the accessory ducts like the retitestes, the vasa efferentia, the epididymis, the vas deferens, which are the ducts and which help in the transfer of the sperms from the testes to the outside. Then there are the accessory glands along with the primary glands that we talk, that is the testes, because it is performing the functions of heterocrine glands. दोनों का काम कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? Because obviously they are releasing sperm, जैसे अभी हमने बताया, उसके साथ ही रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स भी. So इसीलिए हम कह रहे हैं इनको हेटेरोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, डुओक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं. सो इनके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं कुछ और ग्लैंड्स जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिनमें हम इंक्लूड करते हैं सेमिनल वेसिकल्स को, प्रोस्टेट ग्लैंड को. आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज दिस प्रोस्टेट ग्लैंड व्हिच इज इंक्लूडेड, देन देयर आर द सेमिनल वेसिकल्स, देयर आर दिस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिन्हें हम असेसरी ग्लैंड्स कहते हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन सबसे प्राइमरी ग्लैंड जो है वो है टेस्टिस. Next is external genitalia. So external genitalia, the penis. The penis includes the external genitalia of the male reproductive system. Now this is another diagram which is given in the NCERT. So here you can see the male reproductive system in the sectional view. आप देख सकते हैं यहाँ पर. So सामने से अगर आप इसको observe करेंगे, so here you will be able to see
द डिफरेंट द डक्ट्स एज वेल एज द एक्सटर्नल जेनिटल है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है द पीनस, द यूरेथ्रा विच इज द कॉमन ओपनिंग फॉर मेल for the urine as well as for the semen. अब यूरेथ्रा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा में भी डिफरेंस आता है, बिकॉज मेल्स के अंदर यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज है, जबकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा इज कैरिंग ओनली द यूरिन. देयर आर टू separate passages in case of the female, but in males there is only one single passage which is carrying the semen as well as urine. यहाँ पर testes, a pair of testes as you can see. Then here is the epididymis. Epididymis is the duct as we talked about, जिसे भी हमने बात की, accessory duct है जो कि carry कर रहा है, साथ ही इसके साथ attached है vas deferens. And then there are these glands which are accessory glands, that is the seminal vesicle is there, you can see here, prostate gland is there, and then you can see the urinary bladder which is also again, वो again open किस में हो रहा है, urethra में ही open हो रहा है, which is bringing the urine is coming from the ureter into the urinary bladder. Now, next we are going to talk about in detail about the testes, which is the primary sex organ. So, testes जैसे मैंने आपको बताया paired male gonads हैं, ये रिलीज करते हैं स्पर्म और हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ओवल शेप के होते हैं, इनकी लेंथ लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ रहती है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर की. आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, राइट. सो स्क्रोटल सैक कहते हैं, ये स्क्रोटम कहते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई टेस्टीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है. स्क्रोटम का मेन पर्पस क्या है? इट मेंटेन्स अ टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच helps in the process of spermatogenesis, because that's the main function of testes. Testis का मेन काम ही यही है कि वो sperm रिलीज करता है और sperm के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए 2 to 2.5 degree lower than the normal body temperature which is provided in the scrotum. Now another very important point is that the testes descend into the scrotum during the 7th month of the pregnancy. So प्रेगनेंसी के टाइम में ही 7th मंथ के अंदर जो टेस्टीज होती हैं वो एब्डोमेन से डिसेंड होकर आ जाती हैं इनटू द स्क्रोटम. नेक्स्ट, अब इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है कि टेस्टीज जो है इनके ऊपर एक बहुत कवरिंग होती है, एक डेंस कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसके अंदर सेप्टा होता है, यहाँ पर इनसाइड एज सेप्टे के अंदर प्रेजेंट होता है. टेस्टीज के अंदर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हर टेस्टीज जो है आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू almost 250 compartments जिन्हें हम कहते हैं testicular lobules. Each one is a testicular lobules and each lobule is further divided into 1 to 3 seminiferous tubules. 1 to 3 seminiferous tubules जो है ये coiled structures हैं which are present inside the each of the compartment testicular lobules के अंदर present है. अब इसके बाद हम बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर हम देखें तो दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ऐसा ही एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है विच इज गिवन एज फिगर 3.2. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे आपको दिखा रखे हैं. यहाँ पर आप टेकन वन सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस वन सिंगल इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब ये जो सिंगल आपको दिखाई दे रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर दो मेन टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं. दो मेन टाइप के सेल्स कौन कौन से हैं? दैट इज द सर्टोली सेल्स एंड द सेकेंड टाइप इज द जर्म सेल. नाउ जर्म सेल्स जो है आगे फर्दर मियोटिक डिवीजन करेंगे जिनसे आगे क्या बनेंगे? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा. और जो ये सर्टोली सेल्स हैं जिन्हें हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं या फिर जिन्हें हम सस्टेंटिकुलर सेल्स कहते हैं या फिर नर्स सेल्स कहते हैं, इनका मेन पर्पस है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द जर्म सेल्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड many times in the CBSE exam कि सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, और ऐसे ही डिफरेंस करना लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स में many times this has been asked. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जबकि लेडिक सेल्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं. यहाँ का जो बाहर का आपको स्पेस नजर आ रहा है, हियर विल बी प्रेजेंट द इंटरस्टिशियल सेल्स जिन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल्स. Now 2-3 more points I want to add here about the Sertoli cells. जैसे मैंने आपको बताया इन्हें sustenticular cells भी कह रहे हैं. So इनके दो तीन और important functions हैं that you must know, although they might not be given in the NCERT. लेकिन आपको पता होनी चाहिए. पहला तो ये है कि एक मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ which is called the 3S trick. अब ये 3S ट्रिक का क्या मतलब है कि आप जब भी बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तो आपको पता होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स, दैट इज द सेकंड S.
वन एस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें प्रेजेंट है सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स के साथ ही यहाँ पर एक और काम आ जाता है कि दे आर हेल्पिंग इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, द थर्ड एस विल बी द स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और वो हेल्प कब करेंगे? जब उनके पास रिलीज होकर आएगा FSH, FSH विच स्टैंड्स फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को, और सर्टोली सेल्स हेल्प करेंगे आगे इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसीलिए हम उन्हें सपोर्टिंग सेल्स भी कह रहे हैं। इसके साथ ही और एक काम कर रहे हैं सर्टोली सेल्स, दैट इज दे आर रिलीजिंग द फैक्टर्स व्हिच आर कॉल्ड द ABP, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं। और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जैसे हमने अभी बात किया कि लेडिक सेल्स बाहर प्रेजेंट है, राइट, ये इसके बाहर, ये तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर का जो पोर्शन है दैट विल बी द लेडिक सेल्स यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। सो लेडिक सेल्स एंड्रोजन रिलीज करेंगे, एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज करेंगे, तो वहां से हार्मोन को अंदर लाने के लिए, बाइंड करने के लिए ये हेल्प करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प करेंगे, विच आर अगेन रिलीज्ड बाय द सर्टोली सेल्स। इनके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रिलीज कर रहे हैं सर्टोली सेल्स, विच इज कॉल्ड द एंटीमुलारियन फैक्टर। एंटीमुलारियन फैक्टर का क्या काम है? एंटीमुलारियन फैक्टर्स जो हैं ये इनहिबिट करते हैं कि किसी भी मेल के अंदर ओविडक्ट या यूट्रस का डेवलपमेंट नहीं हो, राइट। सो फेमिनिन कैरेक्टर्स मतलब ओविडक्ट या यूट्रस के डेवलपमेंट को इनहिबिट करने का काम जो है वो एंटीमुलारियन फैक्टर करते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही रिलीज होने लग जाते हैं फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। चलिए, तो अब हमने बात किया सर्टोली सेल्स के बारे में, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेल जर्म सेल्स के बारे में। मेल जर्म सेल्स जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और जो कि अंडरगो करेंगे मियोटिक डिवीजन। आपको पता है मियोटिक डिवीजन के बाद ऑब्वियसली मेल जर्म सेल अगर आपसे पूछा जाए तो डिप्लॉइड सेल्स हैं, जिनसे क्या बनेंगे आगे? हैप्लॉइड स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं लेडिक सेल्स के बारे में। तो मैंने आपको अभी बताया बाहर प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट है, जिनके साथ प्रेजेंट रहते हैं अदर ब्लड वेसल्स ऑल्सो, ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है इसके बाहर, और साथ ही साथ तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड वहां पर वो रिलीज कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज द फंक्शन ऑफ द, अगेन यहाँ पर जो हेल्प करते हैं इम्यूनोलॉजिकल, वहां पर प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था लेडिक सेल्स रिलीज करते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन जो कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं which is released from the testes. So one of them, the very important one is the testosterone, जो कि आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म की फॉर्मेशन में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। मैंने आपको बताया कि स्पर्म जो है वो रिलीज हो रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसके बाद वो कैरी होंगे टू द यूरेथ्रा। तो उसके बीच में कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास डक्ट्स आ रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मार्क करना है, यहाँ पर सबसे पहले आएगा रेटेटेस्टिस। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो आपके पास आएगा दैट इज रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से जाएगा, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है वो जाएंगे वैसा एफरेंशिया में, वैसा एफरेंशिया के बाद जाएंगे एपिडिडाइमिस में, राइट। सो यहाँ पर ये देखिए एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस के बाद वो जाएगा आगे नेक्स्ट वास डेफरेंस में, और वास डेफरेंस से आएगा यूरेथ्रा में। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डक्ट्स हैं सारे जो कि कैरी कर रहे हैं स्पर्म को। तो अब कुछ चीजें हैं जो कि आप ध्यान रखिए, जैसे एपिडिडाइमिस के बारे में मैंने आपको बताया, तो एपिडिडाइमिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने पास नोट डाउन करिए। पहली चीज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ टेस्टिस पर ये प्रेजेंट होते हैं। एपिडिडाइमिस लॉन्गेस्ट डक्ट है, राइट, तो सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट है इनमें से, जो सबसे, अगर हम डक्ट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे लॉन्ग जो है वो है दिस एपिडिडाइमिस, लेकिन वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एपिडिडाइमिस भी पेयर्ड है, हाईली कॉइल्ड है, और ये साइट है ऑफ डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। डीकैपेसिटेशन का मतलब क्या हुआ कि स्पर्म पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, राइट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, जो कि उसको मैच्योर होने में और उसको मोटिलिटी में हेल्प करेगा। सो मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी जो है इज प्रोवाइडेड इन द एपिडिडाइमिस इन द here in the male reproductive system. इसके बाद हम बात करते हैं वास डेफरेंस की, जो कि अगेन एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये स्टोर करता है स्पर्म अप टू 3 months। इसका एक स्वोलन ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं एम्पुला, और एम्पुला के थ्रू ये आगे ओपन करेगा इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर ही सिक्रीशन आएगा सेमिनल वेसिकल का भी, राइट। सो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो हमने पढ़ा था वो भी अपनी सिक्रीशन कहाँ पोर कर रहा है? इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट।
and then this ejaculatory duct will now open into the urethra. जैसे मैंने आपको बताया था urethra common passage है और urethra will again open into the urethral meatus.